So we proceed with the next topic. It's all about thermal expansion. Expansion, you know, in everyday life, sometimes when you heat an object, it expands. So the expansion of any solid, liquid or gaseous material by supplying thermal means heat. So when heat is supplied, when it expands, that process is called as thermal expansion. How do you define the thermal expansion process? Thermal expansion, that is the expansion of a substance on heating is called the thermal expansion. Getting it? Thermal expansion of that particular substance. कोई भी substance को अगर heat करोगे, it is going to get expanded. That is a normal process. That is a normal process. But there are certain exceptions जो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे. But what are the different things that happen when expansion takes place? जैसे when we say expansion, all substances, हर एक चीज़, चाहे वो solids हो, liquids हो, or it may be gases and gases, all of them what they do is expand. They expand when? On heating. Expand on heating. And the same thing, solid, liquids and gases will contract on cooling. Cool करने से it becomes contracted and expands when it is heated. This is the normal behavior of any substance. Okay. Now expansion in different cases. How does it depend upon the shape? The expansions can be lengthwise, area wise or volume wise. So when there is the first definition comes, the increase in length, the expansion, when the expansion takes place and there is increase in the length, it is called as linear expansion. So when a solid is heated, let me define it. When a solid is heated, and there is increase in length, then it is called as linear expansion. Getting it? Second is when a solid is heated and there is increase in its area, then it is called as superficial expansion. Getting it? And third case is when a solid is heated and there is increase in volume, we call it as cubical expansion. So these are the three different types of expansions where it can happen lengthwise, it can happen area wise, or it can happen volume wise. So when it is with respect to length, it is called linear expansion. When it is with respect to area, it is called superficial expansion. When it is with respect to volume, it is called as cubical expansion. So these are the three different ways in which the expansion takes place. And a general criteria to remember for objective part, then on heating, which substances or which medium shows maximum expansion. On heating, liquids, remember this, liquids expand
more than solids, and gases expand more than liquids. Getting it? So the process is slightly reversed. Gases expands more than liquid. Liquids expand more than solids. Liquids expand more than solid, and gases expand more than liquids. So this would be your general denomination. So this is how you can remember that liquids expand more than solids and gases expand more than liquid. Okay, remember this. And there are certain substances whose expansion differ according to the temperature. How it differs, let us try to understand. Understood this part? There was an important, all important notes over here. The expansion of any substance on heating is called as your thermal expansion. Solids, liquids and gases, when they are heated, they expand. When they are cooled, they contract. Linear expansion matlab when there is increase in length. Superficial expansion means when there is increase in area on heating. वैसे ही when there is increase in volume after heating, it is called cubical expansion. And I told you the short form that liquids always expand more than the solid and gases expand more than a liquid. Okay. Now as I said, heating causes expansion and cooling causes contraction. This is generalized contraction. But there are certain substances which do an abnormal behavior. Instead of expanding, they contract, and instead of contracting, they expand. Some of the examples. Let us read out the examples. Like water from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. One example. Second example is silver iodide from the range of 80 degrees Celsius to 141 degrees Celsius. Third, silica. As you go below minus 80 डिग्री सेल्सियस, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? दे ऑल ऑफ देम इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग. ऑपोजिट हो रहा है. एंड दे एक्सपांड ऑन कूलिंग. एन ऑपोजिट बिहेवियर. इसके लिए बोला गया है एनोमस बिहेवियर. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग, टू डिफाइन इट, such type of expansion, that is the expansion of a substance, the expansion of any substance on cooling. ऐसे नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट कूलिंग के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपांशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग इन अ स्पेसिफिक रेंज. एक पर्टिकुलर रेंज होता है, जैसे 0 to 4, 80 to 114, और ये बिलो -80. तो देर इज अ सर्टन रेंज. वही रेंज के बीच में सच abnormal behaviors are seen. So the expansion of a substance on cooling a certain range of temperature is called as the anomalous expansion of that particular substance. ओके, जस्ट खाली याद रखना है, रिवर्स याद रखना है. हीटिंग से एक्सपांशन होता है और कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन होता है. बट ऐसे सब्सटेंसेस में क्या होता है? हीटिंग से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कूलिंग से एक्सपांशन हो रहा है. सच टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज एनोमस एक्सपांशन ऑफ substance. Getting it? So we actually learn about the anomalous
expansion of water. After following this, just go through it properly. Notes, ये got it properly, take a proper click, बराबर से notes बना लो. These are the examples of substances from the range, water from the range of 0 to 4 degrees and silver iodide from the range of 80 degrees से लेके 141 डिग्री सेल्सियस and silica when it goes below -80 डिग्री सेल्सियस. ये तीनों भी चीज़ें क्या होती है, contracts on heating and expands on cooling, जो कि रिवर्स है नॉर्मल प्रोसेस का. So such type of behavior where there is expansion of substance on cooling in a certain range of temperature, range बताया ना मैंने, range of temperature is called as enormous expansion of that particular substance. Okay. Okay, so as I said in the previous video, we continue with that, but here we are taking a new topic, a very important topic of the chapter called as the anomalous expansion in case of water. Now how does it take place? वापस से एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ कि whenever there is heating, the substance expands, and whenever there is cooling, the substance contracts. ये एक नॉर्मल बिहेवियर है. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज if we take some amount of water, some water, but that too कौन से टेम्परेचर पे, at 0 डिग्री सेल्सियस, and start heating. Okay, start heating it. तो heating से क्या होता है, expand होता है. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, and start heating it, what will happen is it contracts. Please mention instead of expanding. कब तक, इन द टेम्परेचर रेंज, रेंज मैंने अभी बताया था, टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, बराबर है. और उसके आगे वापस से हीट करो और कंटिन्यू करो. व्हाट विल हैपन ऑन हीटिंग फर्दर, and go above 4 डिग्री सेल्सियस. तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो था, इट वाज ओनली बिटवीन दिस रेंज, उसके आगे नहीं था. तो नाउ इट विल बिहेव नॉर्मली. व्हाट विल हैपन, द नॉर्मल बिहेवियर, दैट इज ऑन हीटिंग फर्दर above 4 degrees, it starts expanding. It expands. Why? Because it has covered up that range. 0 to 4 के आगे निकल गया है. तो now it will behave normally, that on heating it expands. बराबर है. सिमिलरली यही चीज़ को ऑपोजिट लेते हैं, यही चीज़ को हम लोग ऑपोजिट इसमें लेते हैं. दैट ये हीट किया था, अभी हम लोग कूल करेंगे. सो इफ water is initially at a temperature above 4 degrees Celsius, is cooled, we are cooling it. So what will happen when it is cooled, it contracts. normal behavior, क्योंकि it is above 4 है, इसके लिए it will contracts. कब तक, till the temperature stops at 4 degree, till the temperature of water reaches 4 डिग्री सेल्सियस. अभी 4 से और नीचे ड्रॉप करो, 4 से और नीचे ड्रॉप करो. 4 3 2 1 0. कहां तक आ रहा है देखते हैं. ऑन फर्दर कूलिंग इट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये एक रेंज हो गया, एनोमस रेंज हो गया, एबनॉर्मल रेंज हो गया. तो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट विल एक्सपांड. समझ में आ रहा है. सो देयरफॉर
the final definition, this type of unusual expansion of water on cooling it in the range or in the temperature range that is from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius is called as anomalous behavior or expansion of water. Initially we studied about any substance, but here we are learning about water. So only this abnormal behavior or unusual behavior is seen in the range of 0 to 4 bolo या 4 to 0 degrees Celsius. So once we have understood this, we can define the anomalous behavior or expansion of water. The definition says the expansion of water when it is cooled from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius is known as the anomalous expansion of water. Got it? Okay. The same thing I am going to describe with respect to graph. Let us learn about graph, the same things, what happens, and from that graph we will try to derive an important sequence or a point where it compares with the density, that when the density becomes maximum. So we are going to find the density of water with respect to the anomalous expansion of water. Just go through it properly. वापस से अगर पढ़ना है तो जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वाटर का अदर देन 0 to 4 इज जब हीटिंग करेंगे तो एक्सपांड होगा और कूलिंग करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. बट इफ वी टेक सम वाटर एट 0 डिग्रीज एंड स्टार्ट हीटिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स. एक्चुअली होना क्या चाहिए था? एक्सपांड इन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 to 4. बराबर. नाउ ऑन हीटिंग फर्दर अबाउ 4 डिग्रीज, 4 डिग्रीज के ऊपर ये कुछ नहीं करेगा. 4 डिग्रीज के ऊपर वो नॉर्मल हो जाएगा. नॉर्मल क्या हुआ? नॉर्मल हीटिंग में क्या होता है? एक्सपांड. तो इसके लिए ऑन हीटिंग फर्दर अबाउ 4 डिग्रीज इट एक्सपांड. चलो अभी उसका उल्टा करते हैं. यहाँ पे दोनों पॉइंट में हम लोग ने हीटिंग किया था. नाउ रिवर्स जाते हैं और उसको कूल करते हैं. तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आते हैं. लेट अस सी. ऑन इफ द वाटर इनिशियली एट अ टेम्परेचर अबाउ 4 डिग्रीज इज कूल्ड, 4 के ऊपर 5, 6, 7 है, वहां से हमने कूल करना स्टार्ट कर दिया. तो कूल करना स्टार्ट करेंगे तो कूलिंग में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. यस सर, इट कॉन्ट्रैक्ट. कब तक? टिल द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेज 4 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि अपने लिए एबनॉर्मल बिहेवियर 4 से 0 या 0 to 4 ही है. तो जब तक 4 तक रहेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अभी देखो आगे. ऑन फर्दर कूलिंग इट बिलो 4 डिग्रीज से लेके 0 डिग्रीज तक इट विल स्टार्ट एक्सपांडिंग इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. समझे? Therefore, this type of unusual expansion of water on cooling the water in the temperature range of 4 degrees से लेके 0 degrees is called as your anomalous expansion of water. And therefore, the definition according to your textbook, that is the expansion of water when it is cooled from 4 degrees to 0 degrees is known as the anomalous behavior of water. Okay, we proceed further with the graphical part. Okay. So one important topic was left out, that is your graphical representation for showing the maximum density and the volume using the process of anomalous behavior of water. देखो इसमें क्या होता है कि suppose if I take a graph with a temperature on the x-axis and the volume of 1 gram of water. 1 gram of water कितना volume कितना होता है उसका on the y-axis. So what happens is as you go on increasing the temperature, जैसे the volume of water first decreases. वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ये देखो नीचे से बढ़ते जा रहा है ऊपर की तरफ. तो सपोज अगर कहीं पर है, यहाँ पर है सपोज, तो व्हाट विल हैपन फ्रॉम दिस पॉइंट? वॉल्यूम ऑफ वाटर फर्स्ट डिक्रीजेस ऑन हीटिंग. जैसे उसको हीट करेंगे देखो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो मैं ऐसे आगे जाऊँगा. सो ऑन हीटिंग इट फ्रॉम 0 डिग्रीज से लेके 4 डिग्रीज तक वो क्या करेगा?
इट डिक्रीजेज, तो इसको मैं 4 तलक, 4 का पॉइंट यहाँ पर है, तो 4 तलक वो डिक्रीज़ होगा, मतलब वो जाएगा ऐसे, डिक्रीज़ होके जाएगा किधर तलक, यहाँ तलक, जब तलक वो 4 पे नहीं रुक जाता, बराबर है, यहाँ तक रुकेगा। एंड देन इट इंक्रीजेज ऑन फर्दर हीटिंग फ्रॉम 4 to 10, फ्रॉम 4 to 10, 10 का पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो बाद में जैसे 4 पे आएगा, 4 के बाद में इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, मतलब द वॉल्यूम गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एंड इट बिकम्स अ कर्व, दिस वे कर्व, समझ में आ रहा है। तो इनिशियली द वॉल्यूम डिक्रीजेज अप टू 4 degrees एंड देन इंक्रीजेज व्हेन वी हीट अबाउ 4 degrees, the volume increases, the volume of the water increases, okay, and therefore we say for 1 gram of water the volume of water is minimum, volume of water सबसे minimum कभी होता है, when it is 4 degrees, when the temperature is 4 degrees, very important point, graphically I have showed you, and therefore for 1 gram of water which is at 4 degrees, volume is said to be, कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है 1.000, यानी कि 1 centimeter cube, okay, this is for 1 gram, this is your volume compared with temperature का graph. The second graph is about density and the temperature, this we have studied. देखो इसमें क्या होता है, डेंसिटी गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, टेम्परेचर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, एक्स एक्सिस एंड योर वाई एक्सिस, इसको 0 लिया। व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 degrees, 0 डिग्री से मैंने हीट करना स्टार्ट किया, द डेंसिटी ऑफ वाटर फर्स्ट इंक्रीजेज, कहाँ से स्टार्ट करूँ, 0 degrees, डेंसिटी ऑफ वाटर पहले जहाँ पर लिया था वहीं पर ले लेते, सपोज यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया, व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 degrees, और यहाँ पर था डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ वाटर फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 4, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 4 को मैं अगर मैं ऊपर तक लेके जाता हूँ तो पहले वो इंक्रीज़ करेगा कब तलक, यहाँ 1 पे आ जाएगा, कब तलक, व्हेन अप टू 4 degrees तलक, बराबर है। तो फर्स्ट व्हेन इट इज़ हीटेड इट गोज़ इन दिस पैटर्न, फर्स्ट इट इंक्रीजेज एंड देन फ्रॉम 0 to 4 तलक, 0 to 4 तलक इट विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेज अबाउ 4 to 10 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से 4 से लेके 10 तक जाने के लिए वो डिक्रीज़ हो जाएगा, गेटिंग इट। तो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, मतलब ये इसको स्टॉप नहीं कर रहे हम लोग, इट विल गो ऑन, द प्रोसेस विल कंटिन्यू, तो उसको ये कर्व को 10 के आगे भी जाएगा ना वो, तो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। द ऑपोजिट ऑफ इट, यहाँ पर तो हीटिंग कर रहे थे, सपोज उसको कूल कर रहे, कूल मतलब रिवर्स आएंगे, तो क्या होने वाला है, ऑन कूलिंग वाटर फ्रॉम 10 degrees, सपोज 10 degrees से मैंने कूल करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले क्या होगा, द डेंसिटी ऑफ वाटर फर्स्ट इंक्रीजेज, देखो इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो द फर्स्ट डेंसिटी इंक्रीजेज अप टू 4 degrees, 4 degrees तक वो इंक्रीज होगा एंड देन अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, कब तलक, 0 तलक, व्हेन इट इज़ कूल फर्दर बिलो 4 degrees टू से लेके 0 degrees तलक। तो फ्रॉम दिस व्हाट डू वी कम टू नो, 4 degrees पे मैक्सिमम डेंसिटी क्या है, 1, कभी होता है, व्हेन इट इज़ 4 degrees, therefore the density of water is maximum at 4 degrees Celsius, and that maximum density is how much, it is 1 grams per centimeter cube, or you can say 1000 kilogram per meter cube, okay. This is a part of your anomalous expansion of water. After the definition it is there, but you can cover up and try to understand. If you first go through the Hope's apparatus and then reverse the video, rewind the video and see this, it will become easier for you all, okay. So just go through it. So we proceed here to explain the anomalous behavior of water or the anomalous expansion of water. In 1805, T.C. Hope, the name of the scientist, he put forward an experiment. To show the abnormal behavior of this water in the range of 0 to 4 degrees. How did he do that? And for that we first learn about the construction of that apparatus, Hope's apparatus, which he made. So first the apparatus consists of a tall metallic cylinder. There is a tall metallic cylinder, okay. ये एक मेटेलिक सिलेंडर लिया है मैंने, ओके, प्रोवाइडेड विथ 2 साइड ओपनिंग्स P एंड Q, एक P यहाँ पर ओपनिंग है और एक नीचे की तरफ है ओपनिंग है, तो फिर इसको मैं रब आउट कर देता हूँ अंदर का, ओके. सो देर आर 2 ओपनिंग्स, P नियर द टॉप, येस दिस इज योर P नियर द टॉप and Q near the bottom, fitted with a thermometer T1 and T2. So here there is a thermometer T1
and here there is a thermometer T2 चलेगा, and this is your metallic cylinder. This is your metallic cylinder. Okay, then the central part of the cylinder is surrounded by a cylindrical trough. Okay, there is a cylindrical trough. There is a cylindrical trough over here which contains freezing mixture. यहाँ पर आइस और सॉल्ट का मिक्सचर रखा हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज योर फ्रीजिंग मिक्सचर. फ्रीजिंग मिक्सचर विच इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइस प्लस सॉल्ट. सॉल्ट यानी एक इम्प्योरिटी होता है जो आइस में अगर पुट अप करते हैं तो आइस डज नॉट मेल्ट फास्टर. गेटिंग इट? दैट्स वाई वी टेक अ फ्रीजिंग मिक्सचर सो दैट एज इट कूल्स अप अंदर का जो लिक्विड है वो भी कूल होने चालू हो जाएगा. लेट अस सी अंदर पानी लिया कि नहीं वो देख लेते हैं अभी. सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर का सेंट्रल पार्ट के ऊपर is surrounded by a cylindrical trough. This is your trough which contains a freezing mixture. ये रहा freezing mixture of ice and salt. Now the cylinder is filled with pure water. इसको pure water से भर दो. Pure water. Okay. It is filled with pure water at room temperature. Temperature in both the thermometers, that is T1 and T2, is observed at regular interval. मतलब जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा you keep on observing T1 और T2 में क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट. क्या क्या लिया हम लोग ने? मेटेलिक सिलेंडर, सिलेंडर में दो होल किया, अपर P एंड लोअर Q. थ्रू द P थर्मोमीटर T1, थ्रू द Q thermometer T2 to measure the temperature at the upper level and the bottom level. Then there is a trough placed at the central part of the metallic cylinder and the cylinder is filled with pure water. बराबर. And now as the experiment proceeds we are going to check the temperature in both the thermometers T1 and T2 at regular interval. समझ में आ रहा है? Okay. So now I'll tell you what do we observe as the process continues. Okay. So after understanding about the construction part of this Hope's apparatus, let us see ऑब्जर्वेशन के क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं इन द होप्स एपरेटस एज द एक्सपेरिमेंट प्रोसीड्स. ओके, पहले क्या होता है इनिशियली. ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लेट मी गिव यू सम बेसिक आइडिया what things are going to be used in this explanation. जैसे previously we knew that density is equals to mass upon volume था. density is mass upon volume. इसका मतलब density जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है. बराबर. डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इसका मतलब अगर डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. एक चीज़ ये याद रखो. बराबर है. अभी डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज से दूसरा चीज़, इफ़ द डेंसिटी इंक्रीजेज, कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर सॉलिड लिक्विड गैसेस जो भी रहेगा इट विल डेंसिटी इंक्रीज तो वो होगा सिंक. डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वो सिंक होगा, और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगा तो इट विल फ्लोट. ओके, ये दो चीज़ याद रखो. दिस विल बी एप्लीकेबल जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन प्रोसीड करेगा. ओके, नाउ इनिशियली बोथ द थर्मोमीटर्स, कौन सा T1 एंड T2, शो द सेम टेम्परेचर, दैट इज़ योर रूम टेम्परेचर. बट इसके अंदर हम लोग ने कितना लिया है? पानी जो है इट इज़ एट 12 डिग्रीज. द वाटर इसके अंदर जो भी है इट इज़ एट 12 डिग्री सेल्सियस. ओके, 12 डिग्रीज है. तो हम लोग अभी जैसे जैसे उसको कूल करेंगे तो वो क्या होने वाला है? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 पे कुछ जादू होने वाला है. ओके, तो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, यानी टेम्परेचर कम होते जाने वाला है क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है. ओके, तो योर फर्स्ट पॉइंट वॉज इनिशियली बोथ द थर्मोमीटर्स T1 and T2 show same temperature, that is your room temperature. Okay, now first the temperature recorded by the lower thermometer T2 starts decreasing. अभी ये क्यों डिक्रीज हो रहा है एक्सप्लेनेशन भी साथ में कर देता हूँ. लेट अस सी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी साथ में करते हैं. ओके, दिख रहा है? ओके, लेट अस सी. सबसे पहले तो ये फ्रीजिंग मिक्सचर है. बराबर है. बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर यहाँ पर द वाटर इनसाइड द मेटेलिक दिस थिंग कंटेनर, मेटेलिक सिलेंडर, इट कूल्स डाउन. बराबर है. कूलिंग होगा. कूलिंग हो रहा है.
और कूलिंग की वजह से क्या होता है, व्हेन एनीथिंग कूल्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होना यानी डेंसिटी उसका बढ़ना। सो व्हाट विल हैपन इज द डेंसिटी विल इंक्रीज। पानी, अंदर जो पानी है ना वो कूलिंग चालू हो गया अंदर का वाटर का, उसके वजह से जो अंदर का वाटर है इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड बिकॉज इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड, बीच में का जो वाटर लेयर है ठंडा ठंडा पानी, इट विल गो, उसका डेंसिटी विल डिक्रीज। और ये जो सेंट्रल लेवल का जो पानी है, इसे अंदर का ये तो बाहर तो फ्रीजिंग मिक्सचर है, अंदर का जो पानी है उसका डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगा, व्हाट आई टोल्ड यू, डेंसिटी इंक्रीज मतलब वो सिंक करेगा, यानी यहाँ का जो ठंडा पानी था, द कोल्ड वाटर, द कूल वाटर, बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी इट विल सिंक डाउन, इट विल सिंक डाउन, मतलब यहाँ का जो पानी है इट विल कम डाउन, इट विल कम डाउन, इट विल कम डाउन, यानी कि सिंक होगा, बराबर है। और जैसे सिंक होगा तो सिंक होते होते देर इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन याद है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन लास्ट ईयर पढ़ा था। कन्वेक्शन करंट इज सेटअप, यानी ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा और नीचे का जो रूम टेम्परेचर वाला पानी था इट विल गो अप, तो ये ठंडा पानी नीचे आ रहा है और यहाँ का लोअर लेवल का पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, चलेगा, ओके। कन्वेक्शन की वजह से नीचे पानी सिंक हुआ है, तो दैट कूल वाटर हैज़ कम ओवर हियर, कोल्ड वाटर हैज़ कम टू द बॉटम, बराबर है। पहले क्या था, 12 था, तो दोनों भी थर्मोमीटर में रीडिंग 12 का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अभी ठंडा पानी कहाँ पर है, बीच में है, ऊपर है, नीचे है, बीच में है, लेकिन बीच में कोई थर्मोमीटर नहीं है, बट ठंडा पानी अभी यहाँ पर आ गया, तो सबसे पहले रीडिंग किस में दिखेगा, T2 में। सो द T2 थर्मोमीटर स्टार्ट शोइंग द चेंज इन टेम्परेचर, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द लोअर थर्मोमीटर शुड डिक्रीज, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, बराबर है। क्यों बताया मैंने, बिकॉज ठंडा पानी नीचे आया, ठंडा पानी नीचे क्यों आया, बिकॉज उसका डेंसिटी इंक्रीज हुआ। डेंसिटी इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि अंदर का पानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अंदर का पानी कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर कूलिंग हुआ है, फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से अंदर का पानी कूल हुआ है, ओके, डिक्रीजिंग, एंड फाइनली इट बिकम्स स्टेडी एट 4 डिग्रीज। मैंने बताया ना 12, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 पे अटक जाएगा, 4 डिग्रीज पे अटक जाएगा, मतलब यहाँ पर थर्मोमीटर में अपने को रीडिंग दिखाई देगा 4 डिग्री सेल्सियस, बराबर है, ओके। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ रहा है, ओके। नाउ उसको एक्सप्लेनेशन को प्रोसीड करता हूँ। लेकिन सर आपने बताया था 4 डिग्रीज से लेके 0 डिग्रीज, ये रेंज के अंदर देर इज़ एन एनॉमस बिहेवियर, बराबर, एनॉमस बिहेवियर। नॉर्मली क्या हो रहा था, टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होते जा रहा था वहाँ पर कूलिंग हो रहा था, कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी भी हम लोग कूल कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ कूलिंग एट 4 डिग्रीज, ये पानी क्या हो गया, 4 डिग्रीज पे आ गया। नाउ एज सून एज इट रीचेज 4 डिग्रीज, यहाँ पर क्या होना चालू हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वाटर स्टार्ट्स एक्सपांडिंग, द वाटर स्टार्ट्स एक्सपांडिंग इनसाइड इट। यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे एक्सपांशन चालू हो जाएगा, और एक्सपांशन मतलब क्या होगा, एक्सपांशन मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपांशन मॉलिक्यूल्स अपार्ट, यानी डेंसिटी कम हो गया, और जैसे डेंसिटी कम होगा, व्हाट आई सेड, डेंसिटी कम मतलब फ्लोट होना, यानी द वाटर विल राइज अप, मतलब ये जो भी ठंडा पानी है वो कहाँ पर जाएगा, अभी ठंडा पानी ऊपर जाएगा, और ऊपर का जो भी नॉर्मल पानी है वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर सिर्फ ठंडा पानी होते जाएगा। सो अभी चेंजेस कहाँ पर दिख रहा है, ऑन द अपर पार्ट, सो नाउ द थर्मोमीटर रीडिंग यहाँ पर T1 चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर हैज़ राइजन अप, क्यों, बिकॉज डेंसिटी उसका डिक्रीज हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सपांशन हुआ। एक्सपांशन क्यों हुआ, क्योंकि सर वो 4 डिग्रीज पे पानी आ चुका है। क्यों 4 डिग्रीज पे क्या होता है, यहाँ पर एनॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर चालू हो जाता है, एनॉमस एक्सपांशन ऑफ वाटर चालू हो जाता है, इसके लिए। सो क्या लिखा गया है, स्टडी एट 4, वाइल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द अपर थर्मोमीटर T1 रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब फर्स्ट फेज में देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर T1। अभी देखते हैं, वाइल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द लोअर थर्मोमीटर कभी जाके रुक जाएगा, T2 रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 4 डिग्रीज, वो 4 डिग्रीज पे आके रुक जाएगा, क्योंकि 4 डिग्रीज पे क्या चालू हो गया, यहाँ पर एनॉर्मस एक्सपांशन ऑफ वाटर स्टार्ट हो गया। इसके वजह से
T1 शोज अ कंटिन्यूस फॉल इन टेम्परेचर, यहाँ पर डिक्रीज होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, 4 तक तो था ही ऑलरेडी, 4 3 2 1 0, 0 पे आ गया तो इट विल शो 0 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पर वो स्टीडी हो जाएगा 0 एंड देन इट बिकम्स स्टीडी, स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली तुमको क्या दिखा, T1 के अंदर 0 डिग्रीज है और T2 में 4 डिग्रीज पे आके रुक गया। समझ में आ रहा है? एंड देन इट बिकम्स स्टीडी, वही बताया मैंने। ओके ओके ओके। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि फुल पानी के अंदर कितना भी ठंडी रहेगा, कितना भी सीजन, विंटर सीजन कूलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, द लोअर द बॉटम सरफेस ऑफ द वाटर ऑलवेज रिमेन्स एट 4 डिग्रीज, एंड बिकॉज ऑफ द एनॉर्मस एक्सपांशन ऑफ वाटर द अपर लेवल विल कम टू 0 डिग्रीज, और 0 डिग्रीज मतलब क्या, एकदम लोअर टेम्परेचर। तो देयर आर द चांसेस ऑफ फॉर्मिंग एन आइस लेयर ऑन द टॉप, देयर इज एन चांसेस ऑफ फॉर्मिंग आइस लेयर, एक आइस का लेयर फॉर्म हो जाता है ऊपर की तरफ एट दी सरफेस ऑफ दी वाटर। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन था, उसके साथ साथ में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी इसी एक्सप्लेनेशन को हाउ डू वी पुट इन पॉइंट्स, लेट अस सी। समझ में आ रहा है? एनीथिंग इफ नॉट अंडरस्टूड जस्ट रिवाइंड इट, वापस से एक बार गो थ्रू कर लो, ये पूरा साइकिल बराबर से याद रखो। सबसे पहले कूलिंग हुआ, इसके लिए पानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके लिए उसका डेंसिटी हाई हुआ, डेंसिटी हाई हुआ, इसके लिए पानी नीचे आया, पानी नीचे आया तो टेम्परेचर थर्मोमीटर T2 चेंज होने लगा, यानी टेम्परेचर यहाँ पर 4 डिग्रीज तक रिड्यूस होते गया और 4 डिग्रीज पे आके रुक गया। रुक क्यों गया? क्योंकि 4 डिग्रीज के बाद में एनॉर्मस एक्सपांशन ऑफ वाटर होने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नाउ वो एक्सपांड होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी एक्सपांड हो रहा है, जैसे एक्सपांड होगा तो उसका डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी अगर कम हुआ तो पानी, द डेंसिटी कम मतलब फ्लोट यानी राइज अप, सो द वाटर विल राइज अप, तो ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। ठंडा पानी ऊपर आएगा तो टेम्परेचर चेंज कहाँ पर दिखाई देगा? T1 के अंदर। तो वो कहाँ पर जाएगा? 4 से 3 2 1 और 0 पे आके रुक जाएगा। तो इसका मतलब द 2 डिफरेंट रीडिंग्स इन टेम्परेचर इन थर्मोमीटर T1 एंड T2 आर नोटेड। T1 विल शो फाइनल 0 डिग्रीज एंड T2 विल शो 4 डिग्रीज सेल्सियस। गेटिंग इट? ओके ओके। तो यहाँ पर हम लोग ने डेंसिटी और एनॉर्मस एक्सपांशन ऑफ वाटर, ये सब प्रिंसिपल्स यूज़ किया। अभी इसका मैं एक रिटन नोट्स बना रहा हूँ, अभी कीपिंग दिस असाइड हम लोग ये बना लेते हैं। इसको भी मैं अबाउट कर दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ा तो यू कैन रिवाइंड इट अगेन। ओके ओके, जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली। क्लिक ले लो, ज़रा चाहिए तो एक अच्छी तरह से ये ले लो, क्लिक ले लो, इसका क्लिक ले लो अच्छी तरह से, तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली पानी में होता क्या है। ये एक है और इसका क्लिक लिया आपने, हाँ ये एक क्लिक ले लो अच्छी तरह से। ओके ओके ओके। So as I had given you the observation part and also given you the flow chart, here I have given a flow chart how the sequential steps are going on during the process of Hope's experiment. Let us see अभी होता क्या है। Hope's apparatus एक छोटा सा बना रहा हूँ मैं, just for the reference purpose, एक छोटा बनाऊँगा मैं आज। यहाँ पर थर्मोमीटर है T1, नीचे है T2, और यहाँ पर दिस इज़ योर सेंट्रल पोर्शन, दैट इज़ योर फ्रीजिंग मिक्सचर। आर यू एबल टू सी? ओके ओके, दिख, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पर पानी है, सब में पानी है। सेंट्रल पोर्शन का मैंने वो डब्बा बनाया नहीं है फ्रीजिंग मिक्सचर का, दैट आई हैव ड्रॉन अ लाइन, there is freezing mixture. Okay, see here. Now initially water in the cylinder is at a room temperature that is around 12 degrees. बराबर है, 12 डिग्रीज तक का पानी था रूम टेम्परेचर। ओके, देन एज द फ्रीजिंग मिक्सचर कूल्स, यहाँ पर ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर था जैसे वो कूल होगा, देखो फर्स्ट स्टेप आ गया ऑन कूलिंग, बराबर। एज द फ्रीजिंग मिक्सचर कूल्स, वाटर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिलेंडर, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, देख रहा, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसकी वजह से उसका डेंसिटी इंक्रीजेज। सो यहाँ पे वाटर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका डेंसिटी इंक्रीज हुआ। डेंसिटी जैसे इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? देयरफॉर द कूल्ड वाटर सिंक्स, ये जो ठंडा पानी था इट विल कम डाउन, सिंक टू द बॉटम, एंड वार्म वाटर, यहाँ का जो वार्म वाटर है दैट विल राइज अप, बराबर। ये देखो मैंने लिखा था सिंक, इट विल सिंक अप, हाँ सिंक, एंड द वार्म वाटर फ्रॉम द बॉटम, इधर का जो पानी था वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ आ जाएगा, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। बॉटम वाटर फ्रॉम द बॉटम राइजेज अप टू टेक द प्लेस बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से यहाँ का ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, सिंक हो जाएगा, और इधर का जो पानी था वार्म वाटर, स्लाइटली वार्म वाटर,
इट विल राइज टू द टॉप। ओके, अभी क्या हो रहा है, देयर फॉर द लोअर पार्ट कूल्स, मतलब जो भी चेंजेस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, लोअर पार्ट में। इसके लिए बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन लोअर पार्ट का जो थर्मोमीटर है देयर यू विल सी 4 डिग्री सेल्सियस, यानी लोअर थर्मोमीटर लोअर पार्ट कूल्स, सो रीडिंग ऑफ T2 फॉल्स रैपिडली। T2 फॉल्स रैपिडली, फॉल्स क्यों लिखा है सर, फॉल्स क्योंकि 12 से नीचे जा रहे हैं ना, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4 तक रुक जाएगा। देयरफॉर रीडिंग ऑफ T1 डज नॉट चेंज, यहाँ पर T1 में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देयर इज़ नो चेंज इन T1 बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का डेंसिटी इन द अपर पार्ट इज़ नॉट चेंजिंग। इसके लिए यहाँ पर तुम कुछ चेंजेस नहीं देखोगे, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग डाउन। ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही रीज़न है, बिकॉज कहाँ गया वो, ये तो है ना, डेंसिटी इंक्रीज़ हो गया। इसके लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और डेंसिटी इंक्रीज़ हुआ, उसके वजह से जो भी चेंजेस आ रहा है दैट आर सीन इन द लोअर थर्मोमीटर। समझ में आ रहा है इतना? ओके, नाउ वी प्रोसीड। ये हो गया, दिस कंटिन्यूज, ये जो नीचे है ना, दिस विल कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर वाटर विच इज़ बिलो, ये जो नीचे का पानी है, नीचे सेंट्रल पोर्शन के नीचे का जो पानी है, वाटर बिलो द सेंट्रल पोर्शन रीचेस एट 4 डिग्रीज। इसके लिए लोअर थर्मोमीटर में 4 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके, हो गया। और जैसे ही वो हो जाएगा इट विल बिकम स्टेडी। देखो, नाउ द रीडिंग ऑफ T2 बिकम्स स्टेडी, रुक जाएगा। ओके, नाउ लेकिन मैंने बताया था 4 to 0 में क्या होता है, एनोमस बिहेवियर। देखो नाउ, ऑन फर्दर कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द एनॉर्मस एक्सपांशन, बिकॉज ऑफ एनॉर्मस एक्सपांशन, देखो फ्लो चार्ट के अंदर, बिकॉज ऑफ द एनॉर्मस एक्सपांशन क्या हो जाएगा, पानी का क्या होगा, द वाटर ऑफ द सेंट्रल पोर्शन नाउ एक्सपांड्स। चलो ये भी पॉइंट कवर हो गया, द वाटर एक्सपांड्स एंड देयरफॉर द डेंसिटी डिक्रीजेज, ये भी कवर हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गया, डेंसिटी डिक्रीज एंड राइजेज अप। चलो ये भी हो गया, फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया, द वाटर राइजेज अप। कौन सा, यहाँ का जो ठंडा पानी था ना, दैट विल राइज अप और यहाँ का पानी नीचे चला जाएगा। सो नाउ हियर देयर इज कोल्ड वाटर और यहाँ का पानी नीचे आएगा, तो दिस इज ऑल्सो बाई कन्वेक्शन। Then to take its place, water from the top descends, comes down, and by convection water above the central portion starts cooling। बराबर, ये कूल वाटर ऊपर आ गया, so now the temperature changes और density changes कहाँ पर है, अपर लेवल में। तो अपर लेवल में अभी थर्मोमीटर विल स्टार्ट शोइंग चेंजेस, दैट टू रैपिडली। कहाँ गया, so the reading of T1 now falls rapidly till it goes to 0 degrees, and water freezes to form ice। यहाँ पर ice भी जमा हो जाएगा and ice will be formed at the top surface at 0 degrees। समझ में आ रहा है? नाउ T1 शोज स्टेडी टेम्परेचर, अभी T1 का भी टेम्परेचर रुक जाएगा एक पॉइंट पे, कितने पे, 0 पे आके रुक जाएगा। सो इसका मतलब फ्रॉम द फुल एक्सपेरिमेंट वी हैव कम टू नो लोअर थर्मोमीटर और अपर थर्मोमीटर में क्या क्या चेंजेस दिखा हम लोग को। T2 यानी कि लोअर थर्मोमीटर, द लोअर थर्मोमीटर T2 शोज द टेम्परेचर 4 डिग्रीज एट विच वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। ये देखो लिखा था ना, डेंसिटी high density because of high density, so here the maximum density of water is at 4 degree Celsius। this is your objective question, पूछते हैं what is the maximum density of water, maximum density is 4 degree Celsius। then T1 में क्या था, T1 the temperature, upper thermometer T1 shows the temperature 0 degrees and also the formation of the layer of ice above it। okay, ये हो गया पूरा कवर अप, दैट इज़ योर होप्स एपरेटस। लेकिन इसको थोड़ा ग्राफिकली भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है मुझे, तो वेयर शुड आई, कहाँ पर बताऊँ मैं आपको, कहाँ पर बताओ, अच्छा एक छोटा ग्राफ बनाऊँगा, चलेगा ना? सी एक छोटा सा ग्राफ ले रहा हूँ, यहाँ पर छोटा सा ग्राफ लिया है, ये 0 डिग्रीज़ है, ये 4 डिग्रीज़ है, यहाँ पे 12 डिग्रीज़ है, बराबर है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे लोअर थर्मोमीटर में अपर थर्मोमीटर में स्टार्टिंग से पानी जो था, स्टार्टिंग से क्या चेंजेस था, स्टार्टिंग से कोई भी चेंजेस नहीं था, तो वो कैसे था, स्लोली थोड़ा चेंजेस दिखा रहा था, मतलब बहुत टाइम के लिए वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। ये अपना टाइम है 0 1 2 3, ये टाइम बता रहा है, ये वाला लाइन वाई एक्स एक्सिस टाइम बता रहा है, और ये जो है वो टेम्परेचर बता रहा है, बराबर, टेम्परेचर बता रहा है 4 डिग्रीज 12 डिग्रीज। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना ये क्लियरली? ओके, सो अभी क्या होगा, ये व्हेन इन द अपर थर्मोमीटर
स्टार्टिंग से जब 12 डिग्रीज वाटर था ना, 12 डिग्रीज, ये रहा 12 डिग्रीज था, तो स्टार्टिंग में चेंजेस क्या हो रहा था, देयर वाज नो चेंज, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन देयर इज़ नो चेंज। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब एक्सपांशन चालू हो जाएगा, मतलब थोड़ा डिक्रीज होते होते जैसे 4 पे आ जाएगा, 4 पे जैसे ही आएगा, ये जैसे ही 4 पे आएगा वहाँ पर रैपिडली वो ड्रॉप हो जाएगा एंड विल रीच अप टू 0 डिग्रीज। देख रहे हो ना, रीचेज अप टू 0 डिग्रीज। ये किसके लिए है, फॉर द अपर थर्मोमीटर T1, बराबर। सेम वे दूसरा थर्मोमीटर में क्या था, दूसरा T2, इसमें भी मैं बनाता हूँ 4 डिग्रीज, ये है 12 डिग्रीज, ओके, और ये अपना टाइम बता रहा है। अभी इसमें क्या हो रहा था, इसमें यहाँ से ये 4 का लाइन पहले ही बना देता हूँ, यहाँ पे T2 में कंटिन्यूसली रिडक्शन होते जा रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस होते जा रहा है कम टाइम में, देखो थोड़ा कम टाइम के अंदर ही हो रहा है ये सब, और जैसे जैसे होगा और जैसे ही वो 4 पे आ जाएगा वो नीचे नहीं जाएगा, इट विल रिमेन एट 4 एंड देयरफॉर इट बिकम्स कांस्टेंट, मतलब ये घूम के इट विल रिमेन एट 4 डिग्रीज ओनली। तो दिस विल बी अ ग्राफ फॉर T2, दिस इज़ फॉर T1 एंड दिस इज़ फॉर T2। समझ में आ रहा है, 2 ग्राफ्स, ओके। कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कॉल अप, व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन एकदम इजी करके दिया है मैंने, इसका एक क्लिक ले लो और अच्छी तरह से पढ़ो, एक बार बराबर से पढ़ो और डायग्राम को सामने रखो। और मेन इंपॉर्टेंट तो ये मेरा फ्लो चार्ट है, मजाक में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन हो गया ये, ओके। ज़रा देख लो बराबर से, ये डेंसिटी लिखा है, कंफ्यूज मत होना, डेंसिटी है, डेंसिटी इंक्रीजेस, ओके। एंड नाउ देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट गिव रीजन्स, हम लोग गिव रीजन्स को कवर करते हैं, ओके। रेडी हो ना बच्चे लोग, ओके। जरा देख लो, ये पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है मैंने, तो पहले ये इसका क्लिक ले लो या फिर ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, और ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपर थर्मोमीटर, लोअर थर्मोमीटर और अपर थर्मोमीटर का 2 पॉइंट्स है। ये 2 ग्राफ इंपॉर्टेंट था। ये पेज नंबर छोड़ो, ये है फिगर नंबर 6.4, फिगर नंबर 6.4 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन द थर्मोमीटर T1 एंड T2, और ये अपना रफ डायग्राम फॉर होप्स एपरेटस, कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड दिस इज़ योर फ्लो चार्ट टू राइट द फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट द होप्स एपरेटस एंड इट्स चेंजेस, ओके। सो आफ्टर दिस वी कंटिन्यू विद द गिव रीजन पार्ट, okay. So the first important give reason here is the enormous expansion of water helps in preserving the aquatic life during very cold weather. So जैसे ये पॉन्ड या कुछ रहेगा, तो there is water above it, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो तो what will happen is because of the enormous behavior, the enormous expansion of water plays a very important role in nature. किस तरह से, because in some of the cold countries क्या होता है, during winter the upper layer of the lakes, ये जो लेक होता है ना, लेक या पॉन्ड, ये पूरा फ्रोजन हो जाता है, मतलब यहाँ पर एक आइस का लेयर फॉर्म हो जाता है, दे आर फ्रोजन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आइस फॉर्म हो जाता है, फ्रोजन, दे आर फ्रोजन। अभी ये फ्रोजन क्यों हुआ था, क्यों, होप्स एपरेटस, देखा ना आपने, वही प्रोसेस है एनोमस एक्सपांशन का, मतलब पहले नीचे का पानी 4 डिग्रीज पे रुक जाएगा, बाद में हो जाएगा 3 पे, ऊपर जाएगा 2 पे, वापस आएगा 1 पे, एंड देन 0 डिग्रीज पे ऊपर की तरफ, और ऊपर 0 पे आइस फॉर्म होना चालू हो जाएगा, मतलब ये ऊपर का जितना भी पानी है वो 0 डिग्रीज पे है, ओके। सो इन कोल्ड कंट्रीज ड्यूरिंग विंटर द अपर लेयर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स गेट्स फ्रोजन बिकॉज ऑफ आइस, and since the ice is lighter than water, it will float, दिख रहा है ना, it will float over it, and the lower layer नीचे जो पानी है of water, it remains in the liquid form at just 4 degrees Celsius. So 4 degrees is tolerable for the aquatic animals, and that is why this enables the organisms living there to survive even during the severe winter season, because the lower temperature is 4 degrees, it is not frozen, it is not an ice, that's why the aquatic animals can survive at the bottom of the pond or lake or any water body. समझ में आ रहा है, this is your give reason for aquatic life during cold weather, okay. देख लो, there are more, okay. So the next give reason is about bursting of water pipes during winter in cold places. ये देख रहे हो, एक पाइप है, but during the cold ये पानी है अंदर, water inside the pipe, in colder places
व्हेन द टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 4 3 2 1 0 ये होते जा रहा है, एंड गोज़ बिलो 4 डिग्रीज, जैसे 4 के बिलो जाएगा, बिलो 4 डिग्रीज टेम्परेचर अगर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सपांशन होगा। द वाटर इन द पाइप स्टार्ट्स फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग की वजह से ड्यू टू द एक्सपांशन देर इज एक्सपांशन ऑफ वाटर, एक्सपांशन ऑफ द वाटर, और एक्सपांशन मतलब इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द पाइप, ये प्रेशर क्रिएट करेगा एक्सपांड होगा तो। ड्यू टू एक्सपांशन ड्यूरिंग फ्रीजिंग इट विल एक्सर्ट ह्यूज प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप, एंड बिकॉज ऑफ विच इट मे कॉज बर्स्टिंग ऑफ द पाइप। सिंपल, कुछ नहीं था, खाली याद रखना था एज द टेम्परेचर गोज बिलो 4 डिग्रीज it starts because of freezing it starts expanding, and because of expansion it creates a huge pressure on the outer side of the pipes, on the walls of the pipe, and because of which there are chances of bursting. okay, इसी को रिलेटेड एक गिव रीज़न है that bursting of closed bottle, अभी इसको रब आउट कर देते हैं। closed bottle, एक बॉटल है, ये बॉटल है अपना, पानी का बॉटल है, लेकिन उसको मैंने बंद करके अंदर पानी भर के उसको फ्रीज़र जो होता है ना ऊपर का, जहाँ पे बर्फ़ बनता है, आइस बनता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का फ्रीज़र के अंदर में ये बॉटल रख रहा हूँ, पैक्ड बॉटल। इफ़ लेफ्ट इन फ्रीज़र फॉर अ लॉन्गर टाइम, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, यानी 4 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होगा, और जब कम टेम्परेचर होगा तो बिकॉज ऑफ एनॉर्मस एक्सपांशन ऑफ वाटर अंदर एक्सपांशन चालू हो जाएगा, एक्सपांशन की वजह से अ ह्यूज प्रेशर विल बी एक्सर्टेड, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर द बॉटल कैन बर्स्ट। देखो, इफ़ लेफ्ट इन फ्रीज़र फॉर अ लॉन्गर टाइम द वाटर इन द बॉटल विल एक्सपांड, ये रहा बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग। ओके, दिस एक्सपांशन में एक्सर्ट अ लार्ज प्रेशर, देख रहे हो, लार्ज प्रेशर on the walls के ऊपर there will be a large pressure on the walls of the bottle, and therefore it can burst. Getting it? These are all the give reasons related to enormous expansion of water. Okay, so we have a small part of group D, that is part D, that is your greenhouse effect and global warming. Just the definition part is to be studied, but we'll try to see whatever is important in this. The definition of the greenhouse effect. What is it? Greenhouse effect. Actually, it is a process. Greenhouse effect एक टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ प्लैनेट्स सरफेस। अर्थ एक प्लैनेट है, उसके सरफेस को वो हीट कर देता है, वार्म कर देता है, एंड इट्स लोअर एटमॉस्फेयर, लोअर लेयर अपनी तरफ जो सीमित है उतना एटमॉस्फेयर को वो पूरा हीट कर देता है। एटमॉस्फेयर हाउ? बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये जो सनलाइट में से आता है रेडिएशंस, वो नीचे तक तो आता है, तो दे हीट अप ऑल द थिंग्स। रेडिएशंस ऑफ दिस सोलर रेडिएशंस आर long wavelength or of long wavelength which is emitted out from the surface of planet. सॉरी, हाँ मैंने अभी बोला सन का जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग है, नहीं, सन का शॉर्ट है। एक्चुअली होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये सन है अपना और ये अर्थ है अपना, ये अर्थ है, तो यहाँ से द सोलर रेडिएशंस आर कमिंग डाउन, बराबर है, आर कमिंग डाउन, बट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, नाउ ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं, एक तो मीथेन है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो वाटर वेपर है, ये भी हैम्पर करता है, एंड ऑल्सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चारों भी कल्प्रिट है। बिकॉज ऑफ दिस गैसेस दे फॉर्म एन एनवेलप, बिकॉज ऑफ विच जो सोलर रेडिएशन नीचे आते हैं, उनका वेवलेंथ जो होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट वेवलेंथ, बराबर है। लेकिन
जब टकरा के वापस जब रिटर्न होना है तो दे आर नॉट अलाउड टू रिटर्न. वाई? बिकॉज दे आर ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ. दे आर ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ. और ये प्रोसेस जो उसको बोलते हैं इंसोलेशन. क्या बोलते हैं? इंसोलेशन. सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट. इसकी वजह से गर्मी बढ़ रहा है. वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट सरफेस एंड इट्स लोअर एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर का जो ऊपर का लेयर है, अर्थ के ऊपर का लेयर, ये पूरा गर्म हो जाता है. सरफेस लोअर एटमॉस्फेयर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल दिस इंफ्रारेड रेडिएशंस. ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं दे आर इंफ्रारेड रेडिएशंस विच आर ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ. लॉन्ग वेवलेंथ कभी होता है व्हेन दे आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. प्लैनेट से वापस जब रिटर्न होते हैं तभी वो पूरा एटमॉस्फेयर को हॉट कर देता है. अब ये नई रिटर्न होने का रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द गैसेज विच आर not allowing the rays to pass into the space. The greenhouse gases are methane, carbon dioxide, water vapor and chlorofluorocarbon. So just you have to remember the definition and the main culprits, that is your greenhouse gases. समझ में आया? डायग्रामेटिकली बता दिया है मैंने. Okay, just go through it. Okay, so now one more definition is left out, that is the global warming. Global warming. अभी just now I told you about the greenhouse effect. अभी greenhouse effect से हो क्या रहा है? टेम्परेचर ग्लोब का बढ़ते जा रहा है. सब जगह पर गर्मी बढ़ते जा रहा है. द टेम्परेचर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. वाई? बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज. सो बिकॉज ऑफ विच इट इज़ नॉट अ लोकलाइज प्रोसेस, इट इज़ टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. अभी ग्लोबल वार्मिंग ये होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग means the increase in the average effective temperature. कहाँ पर? near the earth's surface. क्यों हो रहा है? ड्यू टू एन इंक्रीज in the amount of all the greenhouse gases which are present in its atmosphere. वही बताया था मैंने अभी. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. सो डेफिनेशन स्टेट्स ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीज इन एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर. एवरेज जो नॉर्मली लो रहा करता था, अभी आजकल देखते हो राजस्थान एंड कुछ सिटीज़ के अंदर टेम्परेचर 45 को क्रॉस करके 50 तक भी पहुंच रहा है. इतना कभी पहले के ज़माने में हमारे बचपन में नहीं देखा हमने. सो द टेम्परेचर इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग. द समर्स आर बिकमिंग एक्सट्रीम होते जा रहा है. सो द ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीज इन एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस. Why? Due to the increase in the amount of greenhouse gases, that is the methane, carbon dioxide, water vapor and chlorofluorocarbon which is present in its atmosphere. Getting it? This is the definition for greenhouse gases. The global warming. उसके अंदर से बाकी सब ओमिट बोला गया है, बट देन टू इफ़ पॉसिबल ना तो ये जो है ना 6.20 ways to minimize the impact of global warming. उसके अंदर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट यू जस्ट रीड अप द हेडिंग्स. दैट इज योर टेक्नोलॉजिकल measures, technological measures, economical measures and policy, गवर्नमेंट के पॉलिसी मेजर्स. इसके जो पॉइंट्स है उसको खाली हाईलाइट कर देना, उसको खाली एक बार रीड कर लेना, द पॉइंट्स इन ऑल दिस थिंग. ओके, ये ज़रा गो थ्रू कर लेना, सो दैट विल हेल्प यू इफ़ एट ऑल दे आस्क यू द MCQs आउट ऑफ इट. तो दिस एंड्स अप विद द चैप्टर. तो दिस इज़ योर complete chapter of heat with the omission part B, C and D में से only the definition part and some important parts I have told you. The greenhouse gases के नाम बता दिए हैं और उसका impact क्या क्या होगा वो आपको खाली points को ही याद रखना है बस. ओके, थैंक यू वेरी मच.